Okay, we'll start here, Kanchan, with you. Let the student come because I think Javi sir is still continuing. So we'll start. Student will come here. Okay. Okay, ma'am. Okay, Kanchan. Shall we start? Yes, ma'am. Okay, beta. Okay. See, last lecture, it was during online and offline lecture. We have completed with our second module. That was the market demand and supply. Now we have to start with the demand function. Okay. So what exactly we have to study in this chapter under demand function? We have to study the meaning of demand, law of demand, then again the determinants of demand, demand function, price, income and substitution effects, nature of demand curve under different markets. Okay, these all point we have to start here. So this all point like what is demand, then again the law of demand. You people have already studied in your 12th semester, so it will not be so difficult for you to understand. Okay, everybody know what is demand here. Demand, it means what? We can say it is a desire for a commodity. Demand refers to the desire which is backed by the ability to pay and willingness to buy the commodity. So everybody knows the meaning of demand here. अगर हमें हमें किसी भी चीज का डिमांड करना है, so first and foremost is what, like we need to have the desire to purchase that commodity. कि ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये commodity मुझे मिलनी चाहिए, and then we should willing to pay for that commodity also. Like ability to pay for the commodity, it means उतना money अपने पास होना चाहिए. We should have the affordability, we should have that money to pay for the commodity, and whatever amount we are paying for the commodity, that we should feel worth कि okay जो पैसा मैंने एक commodity के लिए दिया हुआ है, it is quite worth for that commodity. तो उसके हिसाब से हम लोग basically demand करते हैं. So demand मतलब desire होना, that only one thing would be there and then it will be called as a demand. ऐसे नहीं रहता है. अगर हमें ऐसे डिमांड करें तो हम लोग हर एक चीज को डिमांड करते बैठेंगे, बिकॉज हमें हर एक चीज का ये डिजायर रहेगा, ये चीज खरीदनी है, वो चीज खरीदनी है, बट दैट वी विल नॉट गोइंग टू कॉल इट एज अ परफेक्ट डिमांड. ओके, डिमांड अगर हमें किसी को बोलना है तो एक तो पहली बात होती है कि हमें डिजायर होना चाहिए. सेकेंड थिंग विल बी हियर कि हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए उसको खरीदने के लिए. एंड द थर्ड थिंग इज दैट वट एवर अमाउंट वी आर स्पेंडिंग ऑन दैट कमोडिटी टू परचेस इट, वो देते वक्त हमें खुशी होनी चाहिए कि हाँ जो भी अमाउंट पे मुझे ये कमोडिटी मिल रहा है तो वो उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए वर्थ है करके. सो दैट वे वी शुड गेट द फीलिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट योर मीनिंग Good ऑफ morning, डिमांड. ma'am. Then the law of demand. See, everybody know the law of demand was actually introduced by Dr. Alfred Marshall. Okay, ये law of demand Alfred Marshall ने बनाया था. When you have studied this law of demand in your 12th standard, at that time you might have seen कि वहाँ पे कैसे लिखा जाता है. What is the way of writing of law of demand? First you are giving the introduction, and then you are giving the meaning of demand. Then the law of demand का statement लिखते हो. उसके बाद में function, उसके बाद में उसका शेड्यूल, एंड देन द Ma'am, डायग्राम के अंदर डिमांड कर्व. going. ओके, दिस इज व्हाट द वे यू माइट हैव स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड हियर. ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड के लिए अगर इंट्रोडक्शन देना है तो इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग यही बोल सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी को डिमांड करने से पहले वी आर लुकिंग इनटू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. Then the secondary part we are looking at the quality, and then the rest other like whether we really like it or not. Okay, so सबसे पहला जो रहता है, जो फर्स्ट फैक्टर रहता है किसी भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करने वाला, दैट विल बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो इसके लिए प्राइस ही एक अट्रैक्टिव वाला एक सिस्टम रहता है कि जो कमोडिटी खरीदने के लिए आपको व्हाट आई कैन से इंटेंस करेगा कि यस वी नीड टू परचेज दैट कमोडिटी. हाँ, लेकिन फर्स्ट अट्रैक्शन एज आई एम सेइंग दैट इट विल बी द प्राइस. बट कभी कभार क्या होता है कि जो पैकेजिंग रहता है किसी भी कमोडिटी का पैकेजिंग रहता है, तो वो कमोडिटी क्या है वो जानने का जो एक्साइटमेंट रहता है, तो वो भी कब आता है व्हेन वी आर लुकिंग एट द पैकेजिंग एंड दैट पैकेजिंग वी आर फाउंड इट क्वाइट अट्रैक्टिव वन. सो इट विल गोइंग टू मोटिवेट यू टू आस्क फॉर द कमोडिटी लाइक व्हाट इज द प्राइस. तो पहला तो ऑब्वियसली पैकेजिंग रहेगा, उस कमोडिटी का लुक रहेगा, कैसे हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया है वो रहेगा. And the second thing, like actually the consumer will going to demand a commodity, that will be the price of his commodity. ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है स्टूडेंट? आपको इंट्रोडक्शन में यही लिखना है कि किसी भी कमोडिटी का डिमांड जब हम लोग करते हैं, वॉट एवर कमोडिटी वी आर डिमांडिंग, so the first and foremost that we are looking into the commodity, it is the
price of that commodity. If we are finding that price is quite comfortable to us, then only we are demanding, or we can say we are purchasing the commodity here. Okay. Then the law of demand. आपको फिर बाद में लिखना है कि law of demand क्या है. Law of demand is basically introduced by the Alfred Marshall. Am I right, student? तुम लोगों ने पढ़ा है ना ये? ठीक है. So law of demand Alfred Marshall ने इंट्रोड्यूस किया है. अभी आप लोग मुझे ये बताओ स्टूडेंट कि व्हेन आई एम सेइंग अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, सो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है इसमें कौन से दो फैक्टर्स को उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है? कैन एनीवन टेल मी? कौन से दो फैक्टर को उन्होंने कंसीडर किया? कौन से दो फैक्टर के रिलेशनशिप के बारे में ये कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है? बोलो स्टूडेंट, क्या लगता है आप लोगों को? लॉ ऑफ डिमांड में कौन से दो फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है? कौन से दो फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया जाता है? टेल मी. प्राइस, yes, price and commodity. yes, price and quantity demanded. okay, ये दो फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है लॉ ऑफ डिमांड में. So what is that indicating? Law of demand क्या indicate करता है? According to the Alfred Marshall, that law of demand is indicate when the price of a commodity increases, what will going to happen with the demand? Yes, student. Demand will fall. Demand will will fall. Very good, Murad. Okay, demand will fall, and when the price of a commodity fall, then demand will going to increase. Here. Right. Okay. Yes. So law of demand में generally क्या बताया गया है कि while giving the statement, they are saying other things being equal. अभी other things being equal or other things being constant. Can anyone tell me what is the meaning of this word? Other things being constant ऐसे क्यों कहा जाता है किसी भी लॉ का स्टेटमेंट देते वक्त? यस, कोई बता पाएगा मुझे? ये भी आप लोगों को देखो इसमें आया है, सेक्टरिस पैरिबस करके आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा इन योर 12th. Yes ma'am. Yes ma'am. Ceteris paribus. तो उसका मीनिंग क्या होता है मुराद? सेक्टरिस पैरिबस मतलब क्या होता है बेटा? मैम उसका ही मतलब होता है ना अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. हाँ, अदर गुड्स को हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं रहेगा. ओके, सो दैट वे वी विल गोइंग टू से हियर. So other things being constant, why any of the economics or any of the scientists are using this word? Because अगर उन्हें scientists देखो at a time पे he cannot take many variables और उसके ऊपर वो स्टडी नहीं कर पाएगा. तो हर एक कॉन्सेप्ट को अगर डिटेल में समझना है, दैट कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, तो उसको डिटेल में समझने के लिए व्हाट इज इट डूइंग? कोई भी दो फैक्टर लेता है, उनका रिलेशन के बारे में बात करता है. जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में ही हैज टेकन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. बट अगर देखा जाए तो क्वांटिटी डिमांड में स्टूडेंट प्राइस ही एक ऐसा चीज है क्या जो अफेक्ट करता है? व्हाट डू यू ऑल से? नो मैम. यस नेहा, बोलो फिर से. No ma'am, other thing also impact in product. Yes, other factors are also affecting here. तो प्राइस के अलावा अगर मुझे कहना है कि चलो प्राइस को छोड़ो, प्राइस नहीं हम लोग देखेंगे, तो हम लोग ऐसी क्या चीज देखेंगे कि जिसके अकॉर्डिंग वी विल गोइंग टू डिमांड द कमोडिटी. सो दैट विल बी द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी. Then again, what we can say, what is current trend for the commodity, and then again prices of substitute commodity. So these are all the other factors, isn't it? तो ये सब factors को अगर मैं वहां पे बीच ऐसे कंसिडर करूंगी कि ये भी चेंजेस हो रहे हैं, तो शायद मैं मेरा प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन बराबर नहीं दिखा पाऊंगी. ओके, एंड देयरफॉर टू अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, वी आर अज्यूमिंग कि क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, current trend remain constant, then again prices of substitute commodity or the complementary commodity, it will remain constant. तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि other things being constant और other things being equal, और we can say ceteris paribus. हम लोग ये theory कोई भी statement start करने से पहले we will going to use this one. So remember student, when in the exam you will going to write a statement of the law of demand, तो आप लोगों को ये line लिखनी है, other things being equal. You cannot directly write that the law of demand state that when the price increases, the demand fall. ऐसे नहीं लिखना आप लोगों को. आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना है? According to Alfred Marshall, the law of demand state that other things being equal,
If the price of commodity rises, the demand fall, and if the price of commodity fall, the demand rises here. So this way you people have to write the statement of law of demand. Is it okay, student? Can you do that? ये समझ में आया है नहीं आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके बेटा, ठीक है। तो ये होने के बाद में आप लोग क्या लिखते हो? अजम्पशन लिखोगे। अजम्पशन अभी क्या रहेगा, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली डायग्राम दिया है, बट आप लोग एग्जाम में वैसे नहीं करोगे। आप लोग कैसे करोगे? अगर ये थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन आता है, देन हाउ यू विल गोइंग टू राइट हियर? फर्स्ट यू विल गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन, देन यू विल गोइंग टू राइट द लॉ मीनिंग ऑफ डिमांड, एंड देन लॉ स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा आप लोग करोगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होने के बाद में यू पीपल हैव टू राइट द दिस वन, दिस इज द assumption of law of demand। लेकिन अगर आप लोग नोट करोगे, उन्होंने assumption की जो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट, उन्होंने वो बहुत एक्सप्लेन किए। देयर इज नो नीड टू गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस पॉइंट, because you already know what exactly they are trying to say. Why I am saying you already know? Because already in the 12th standard in a detail you have studied what are the assumption of law of demand। तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे एग्जाम में? एक सिंगल लाइन का लिखोगे, कोई भी लाइन का कोई भी एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है। सी, what is the first assumption here? There is no change in consumers income। yes, this is true because अगर इनकम किसी भी कंज्यूमर का बढ़ जाएगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? डिमांड भी बढ़ेगा। so we have to assume here there is no change in consumer income। okay, price of related goods, it means what you can say student? यहाँ पे related good मतलब क्या बोलोगे आप लोग? क्या रहते हैं related goods? yes, मैम सब्स्टिट्यूट गुड्स रहते हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूट गुड कहोगे या फिर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कहोगे, वेरी गुड, ठीक है। सो वी आर अज्यूमिंग हियर कि जो भी प्राइस रहेगा हमारे कमोडिटी का, जो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंटरी है, वो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ दोस कमोडिटी। अदरवाइज वो भी क्या करेगा? डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, नेक्स्ट वन हियर, नो चेंज इन द टेस्ट। ओके, तो नो चेंज इन द टेस्ट मतलब कोई खाने वाला ही कमोडिटी नहीं है ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते कि नो चेंज इन द टेस्ट मतलब देयर इज नो चेंज इन द फैशन, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द हैबिट्स, देयर विल नॉट बी अदर फैक्टर दैट विल गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ओके, so there will not be any change in the taste। now the next one here, no uncertainty about the future। नो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज ये भी बात है कि जो डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। नो अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर मतलब अगर फ्यूचर में तुम्हें लगता है कि ये कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग क्या करोगे? अपना प्रेजेंट भी डिमांड चेंज करोगे। तो इसके लिए वी आर अज्यूमिंग कि वहां आगे जाके अपने कमोडिटी के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। सो देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन द future, so there will not be any kind of uncertainty about the situation of future। okay, now the next one here, no change in the size of population and its composition। yes, आप लोगों को पता है कि जैसे population बढ़ता रहता है उसके हिसाब से डिमांड भी बढ़ता है। now they are saying composition। composition मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि जो हमारा population है वो population में चाइल्ड एज पॉपुलेशन कितना है, वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है, then again old age population कितना है, accordingly the composition of population, the demand for certain commodity will also going to change। so here we have to assume there will not be any kind of a change in the size of a population and the composition। now next one here, no change in advertisement। can anyone tell me here why they have given the importance to the advertisement student? एडवर्टाइजमेंट चेंज नहीं होगा, ऐसे क्यों उन्होंने लिखा रहेगा? आपको क्या लगता है? एडवर्टाइजमेंट डिमांड को अफेक्ट करेगा क्या? Yes, ma'am. Yes. yes, advertisement will also Yes. going to affect the demand है। इसके लिए हम लोग को अज्यूम करना है कि जो भी अपना एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी रहेगा वो हम लोग ऐसा ही रखेंगे, उसके अंदर देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब स्टूडेंट आप बता पाओगे मुझे कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे डिमांड को अफेक्ट कर सकता है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? Taxes. यस, वेरी गुड, Taxes. टैक्सेस। तो टैक्सेस के वजह से मतलब क्या हो सकता है? बोलो। Increase in मैम demand. टैक्स बढ़ जाएगा तो क्या क्या?
टैक्स की वजह से हमारा डिमांड कम हो जाएगा। टैक्स की वजह मैम से इनकम इनकम इसमें है कि इनकम पे प्राइस भी बढ़ इफेक्ट करेगा सकता ना है टैक्स। और टैक्स की वजह से प्रोडक्शन भी कम ज्यादा हो सकता है, बिकॉज वो जो प्रोड्यूसर रहेगा उसको खर्चा भी बढ़ सकता है या फिर कम भी हो सकता है. ओके, एंड it will going to affect the demand. So therefore we are assuming there will not be any change in the government policy. Okay, now the next one they are saying no change in natural factor. तो यहाँ पे नेचुरल फैक्टर मतलब आप लोग क्या बताओगे मुझे, क्या एग्जांपल दोगे? Climate condition. मैम Which one? अम्ब्रेला, रेनकोट, क्लाइमेट रेनफॉल, जैसे। हाँ, नेचुरल क्लाइमेट फैक्टर चेंजेस। मतलब यस यू आर करेक्ट कि मतलब वहां पे ना ही कोई नेचुरल कैलामिटीज होगा और अदर वे वी कैन से कि क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब एक तो नेचुरल कैलामिटीज के बारे में बात करेंगे, दूसरा सीजन वाइज वहां पे सेल होता है किसी भी कमोडिटी का, उसके अकॉर्डिंग लोगों के नीड जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं. सो दैट वे वी विल बी अज्यूमिंग देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इनटू द नेचुरल फैक्टर हियर. इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? व्हाट आर ऑल अजम्पशन? ये समझा Yes, आपको? ma'am. यस मैम। ठीक है. एग्जाम में देखो आपको अभी फर्स्ट ईयर के लिए तो ऐसा नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे नहीं आता है. ये आपको 12th स्टैंडर्ड में आता है कि अजम्पशन को भी, अजम्पशन के लिए ही 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा. डायरेक्टली वी विल गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. सो लॉ ऑफ डिमांड में यू जस्ट नीड टू राइट द सिंगल लाइन अबाउट द अजम्पशन. नो नीड टू गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द अजम्पशन, अदरवाइज पूरा एक्सप्लेनेशन देते बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा लिखते लिखते. इसके लिए अवॉइड करने का वन वन लाइन का आपको अजम्पशन लिखना है. इज इट क्लियर? यस. यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा स्टूडेंट. वी हैव स्टार्टेड विद द लॉ ऑफ डिमांड. मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मैं आपको वे ऑफ राइटिंग ऑफ आंसर बता रही हूँ. अगर आप ये क्वेश्चन आएगा आपको 7 या 8 मार्क के लिए, ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन आता है सो व्हाट विल बी योर वे ऑफ राइटिंग? फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन, सेकंड विल बी द मीनिंग ऑफ डिमांड, third will be the statement of law of demand, and then the fourth will be the assumption of law of demand. उसके बाद में आप क्या करोगे? डिमांड शेड्यूल निकालोगे एंड डिमांड कर्व निकालोगे. सी शेड्यूल दे हैव नॉट गिवन. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक असाइनमेंट दे के रखा था कि यू पीपल हैव टू लाइक ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, तो आप लोगों को वही डायग्राम फिर से यहाँ पे रिपीट करना है कि चलो अभी यहाँ पे उन्होंने शेड्यूल नहीं दिया है, बट आई एम सेइंग लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द लॉ ऑफ डिमांड एट दैट टाइम यू नीड टू राइट द शेड्यूल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड आल्सो. तो अगर मैं शेड्यूल की बात करूंगी स्टूडेंट, तो आप लोग मुझे कैसे दिखाओगे? शेड्यूल में कौन से 3 कॉलम आएंगे? कैन एनीवन टेल मी हियर व्हाट विल बी द 3 कॉलम? एक रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा रहेगा Price. Unit. प्राइस, क्वांटिटी। यस वेरी गुड, दूसरा रहेगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, तीसरा रहेगा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. तो सीरियल नंबर तो जो रहेगा जैसे 1 2 3 4 5. प्राइस के लिए वी कैन से 10 20 30 40 50. तो आपको प्राइस के सामने ब्रैकेट में लिखना है प्राइस पर यूनिट. ठीक है, पर यूनिट पे क्या प्राइस है करके. तो पर यूनिट पे अगर प्राइस तुम लोग स्टार्ट करके दिखा रहे हो 10 20 30 40 50, तो आप लोग वहां पे डिमांड में क्या लिखाओगे? क्वांटिटी डिमांड में यू कैन गो विद 100 रेंज, अदरवाइज आप लोग टेंस का भी रेंज लोगे तो भी चलेगा. अगर प्राइस 10 है तो वहां पे दिखा दो क्वांटिटी डिमांडेड इज 500. ठीक है, अगर वहां पे प्राइस 20 होता है देन यू हैव टू शो द क्वांटिटी डिमांडेड इज 400. कैन यू डू दैट स्टूडेंट? आएगा आप लोगों को ये करने, शेड्यूल निकालने? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग कैन यू ड्रॉ द डायग्राम आल्सो डिमांड कर्व? यस मैम। ठीक है. यस हाँ, तो आप लोगों को क्या क्या करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया करके अगेन आई एम नॉट रिपीटिंग इट. ओके, तो आप लोगों को डिमांड शेड्यूल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम आल्सो वेयर यू हैव टू शो द डिमांड कर्व. फिर उसके बाद में यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम. व्हाट एक्सप्लेनेशन यू विल गोइंग टू गिव हियर? इट इज सिंपल में लिखने का. On the y-axis, we are measuring the price of commodity, and on the x-axis, we are measuring the quantity demanded. The demand curve, as you can see in the diagram, it is sloping downward, which indicates that as the price of commodity rises, sorry, as the price of commodity falls, the demand increases. Okay, so it shows the inverse relationship between price and quantity demanded. Okay, student, able to understand?
Yes, इतना लिख ma'am. पाओगे या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी ओके, सैयद सुगरा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सैयद सुगरा, यस सैयद सुगरा. Yes, ma'am. हाँ, सुगरा, कैन यू जस्ट टेल मी हियर, अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड लिखने के लिए बोलती हूँ तो आप कैसे वो आंसर को 7 या 8 मार्क के लिए कैसे कैसे लिखोगे? क्या क्या पॉइंट्स को लगाओगे उधर? बोलो पहले आप क्या लिखोगे बेटा? शुक्रा, यू आर म्यूटेड एक्चुअली. पहले आप क्या लिखोगे अगर आपको आंसर लिखना है 7 या 8 मार्क के लिए, तो पहले आप क्या लिखोगे? बोलो. Okay, who will tell me what you will going to write first? Introduction. Ma'am, may Introduction. हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद में Statement of the Meaning. law. मीनिंग ऑफ डिमांड. थर्ड वन आएगा स्टेटमेंट ऑफ डिमांड, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. उसके बाद में Assumption. यस, अजम्पशन के बाद में Diagram. Diagram. डायरेक्ट डायग्राम निकालोगे, शेड्यूल नहीं निकालोगे. Schedule. Fill diagram. हाँ, पहले तुम लोग टेबुलर फॉर्म में बताओगे डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम. बाद में क्या करोगे डायग्राम निकालने के बाद में? एक्सप्लेन हाँ, करेंगे डायग्राम. एक्सप्लेन करोगे आप लोग, ठीक है? डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे, एंड स्पेशली यू विल बी फोकसिंग ऑन द डिमांड कर्व. स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? कैसे 7 या 8 मार्क के लिए क्वेश्चन लिखना है? इज दिस Yes, ma'am. क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, चलो अभी हम लोग ये वाला पॉइंट देखते हैं. व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? एक्सेप्शंस का मीनिंग क्या होता है कि बोलते ना, अरे नहीं ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है करके, ऐसे हम लोग फ्रेंड्स में बोलते हुए ऐसे बोलते थे, तेरे लिए एक्सेप्शनल है करके, तो अलग है सबसे. ओके, सो एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या अलग है? लॉ ऑफ डिमांड तो हमेशा यही बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, लेकिन ऐसे कुछ कमोडिटी है कि जिनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहता है, वो थोड़ा अलग ही रहता है. ओके, सो द फर्स्ट वन विच विल गोइंग टू सी हियर, दैट इज गिफेन गुड. गिफेन गुड मतलब क्या होता है? गिफेन गुड एज अ टाइप ऑफ इंफीरियर गुड, मतलब थोड़ा सा रॉ मटेरियल, ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कमोडिटी नहीं रहता है, दैट वे वी कैन से. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर, inferior goods are purchased more at a higher price and less at a lower price. So what are they trying to say here? कि अगर किसी कोई अमीर मतलब सॉरी कोई गरीब है और वो गरीब के पास पैसा ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो जो फूड वो खा रहा था या फिर जो फूड वो यूज करता है उसका क्वालिटी बहुत कम है और फिर भी उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जो डिमांड रहेगा दैट विल गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, ऐसा आप लोग बोलोगे मैम हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है, अभी मैं आपको बोलूंगी आप लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक सम एग्जाम्पल लाइक राइस का, मैं आपको है ना राइस क्वालिटी का एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, तो अगर राइस अवेलेबल है, पहले अवेलेबल था 20 रुपया किलो से, तो अभी तुम लोग नहीं खरीदते थे बिकॉज तभी 25 रुपीज वाला जो राइस था तो वो तुम लोगों को अच्छा क्वालिटी का लगता था और आप लोग वो प्रिफर करते थे. बाद में क्या हो गया कि मतलब देखो आई एम कंसिडरिंग यू पीपल एज इन द मिडिल क्लास कैटेगरी, और जो 20 रुपया खरीदते हैं मैंने उनको गरीब कैटेगरी में कंसिडर किया हुआ है. ये समझो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो. रिच वालों का बात यहाँ पे अलग है, वो लोगों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इफ द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, बट द मोस्ट affected people when the prices are increasing they are the poor and the middle class people. Okay, poor people. So यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि अगर मैंने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली 25 रुपीज केजी का चावल उनके लिए अफोर्डेबल था और जो गरीब था उनके लिए 20 रुपए किलो वाला अफोर्डेबल था. अभी क्या हो गया, जो 25 रुपए वाला चावल है अभी वो 30 रुपीज में हो गया और जो 20 रुपए वाला था जो लो क्वालिटी का था वो 25 रुपए में हो गया. नाउ यू टेल मी, मतलब तभी तुम लोग क्या करोगे? कैन एनीवन टेल मी हियर? जो मिडिल क्लास फैमिली वो क्या करेगा, 25 रुपए वाला प्रेफर करेगा या 30 वाला प्रेफर करेगा? 25 रुपए वाला. 25 वाला प्रेफर करेगा ना, बिकॉज वहां पे उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे मतलब जो मेरा कॉस्ट कुछ बढ़ेगा नहीं,
मैं पहले भी 25 रुपया वाला ही ले रहा था, अभी भी मैं 25 रुपया वाला ही ले रहा हूँ। हाँ, भले क्वालिटी में थोड़ा फर्क है, बट स्टिल माई जो भी सैलरी वट एवर आई एम अर्निंग, तो उसमें जो मेरा एक्सपेंडिचर रहेगा वो नहीं कम होगा। मतलब वो सॉरी, वो कुछ बढ़ेगा नहीं, वो ऐसा है वैसा ही रहेगा, राइट। सो इसके लिए कहा जाता है कि व्हेन द इंफीरियर गुड्स प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, तो उनका डिमांड भी वहां पे बढ़ जाता है। आर यू गेटिंग मी दिस पॉइंट स्टूडेंट? ये समझ में आ रहा है आपका गिफ्ट गुड क्यों प्राइसेस बढ़ते हैं? ओके, Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्नॉब वैल्यू। अभी देखते तुम लोग ऐसा करते हो क्या? स्नॉब वैल्यू मतलब क्या? देखो, रिच कंज्यूमर्स who attach a snob value to owning and displaying expensive goods such as diamonds, jewelry, etc., purchase more such good as their prices rise. On the other hand, as their prices fall, the same consumer may buy less due to the loss of a snob appeal because everyone can afford them. देखो, स्नॉब वैल्यू का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? स्नॉब वैल्यू मतलब बोलते हैं ना कि शो ऑफ करना, सबसे ज्यादा यूनिक कमोडिटी मेरे पास ही अवेलेबल है, उस चीजों का ईगो रखना। ईगो रखना इन द सेंस कि किसी किसी को आदत रहता है कि जस्ट शो दैट व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वी आर फॉलोइंग, और इसके लिए हम कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट को खरीदते हैं करके ऐसा। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जो रिच कंज्यूमर्स रहेंगे वो लोग हमेशा डायमंड डायमंड के बारे में उन्होंने एग्जांपल दिया है। अगर डायमंड का प्राइस बहुत बढ़ जाता है उस टाइम पे वो लोग उसके लिए ज्यादा डिमांड करते हैं। बिकॉज क्यों? कि अरे बाप रे, इतना महंगा है और ये चीज उसने खरीदा हुआ है, मतलब क्या रिच है यार। तो ये उनको चाहिए रहता है, दैट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन दे वांट टू गेट एंड दे वांट टू शो दैट लाइक हाउ मच रिच दे आर। अगर उसी डायमंड का प्राइस कम हो जाएगा तो वो लोग उसको नहीं खरीदते हैं। ओके, नाउ यू टेल मी स्टूडेंट, हाउ मेनी फ्रॉम आवर क्लास आर लाइक दैट? तुम लोग भी ऐसे बिहेव करते हो क्या कि अगर No, कमोडिटी ma'am. का प्राइस मतलब दिखावा करने के लिए? अभी No, ma'am. बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल मी, जैसे सब लोगों का आईफोन बहुत पसंद है, तुम लोगों ने मुझे एक एग्जांपल पे बोला था कि वी आर प्रेफरिंग द आईफोन, ठीक है। आईफोन का सबको पता है कि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है, तो घर पे उतना अफोर्डेबिलिटी भी नहीं रहेगा उतना, मतलब घर पे मम्मी बोलती रहेगी अरे कोई तो 5-10 हजार वाला मोबाइल फोन लेके रख करके, ठीक है। और मतलब उतना ही अफोर्डेबिलिटी आप लोगों के पास भी रहेगा कि 5 to 10,000 ठीक है घर के सिचुएशन के लिए। तो कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि नहीं, चलो माँ बाप के लिए जितना अफोर्डेबल है, मेरे घर परिवार के लिए जितना अफोर्डेबल है, आई विल गो अकॉर्डिंगली। लेकिन मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं रहते, वो लोग लिटरली जिद पकड़ के बैठते हैं कि हमें आईफोन ही चाहिए, तो बाय एनी कॉस्ट पेरेंट्स को भी वो पूरा पैसा अरेंज करना पड़ता है। आप लोग ऐसे करते हो स्टूडेंट? No, Yes? ma'am. No, ma'am. नहीं, तुम सब लोग बहुत अच्छे हो ना? Yes, ma'am. Yes, यस मैम। ma'am. मुझे 2-3 लोगों ने यस मैम बोला, बाकी लोगों ने नहीं बोला, तो मतलब बाकी सब लोग Yes, खराब ma'am. है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके, वो लोग भी अच्छे हैं मैम, कंसीडर कर लीजिए ना। कंसिडर करेंगे। ओके ओके, मैं देखती हूँ ना मुरा, तेरा तेरा मोबाइल कौन सा है मैं देखूंगी आने के बाद में, ठीक है। ओके, सो स्नॉब वैल्यू ये होता है कि मतलब बाकी लोगों मतलब कि कितना कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना स्टेटस को कितना ज्यादा अच्छा दिखा सकता हूँ, वो रहेगा, ठीक है। एंड ऐसे भी कोई कोई लोग रहते हैं, अगर मतलब कमोडिटी सस्ते में मिलता है लेकिन दिखाते वक्त उसका प्राइस बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन यार, प्राइस एक्सपेक्टेशन। सी, अभी आप लोगों को अगर लगता है कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आप लोग क्या करोगे प्रेजेंट में? वो कमोडिटी का प्राइस भले ही ज्यादा रहेगा, देखो प्रेजेंट के लिए भी वो कमोडिटी का प्राइस आपके लिए ज्यादा है, लेकिन आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा और फ्यूचर में होने वाला है, तो आप लोग प्रेजेंटली क्या करोगे? डिमांड ज्यादा करोगे या कम करोगे? ज्यादा करेंगे ज्यादा मैम, वी विल बाय यस, मोर वेरी गुड। क्वांटिटी। आप लोग क्या करोगे? डिमांड ज्यादा करोगे। तो मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्राइस एक्सपेक्टेशन की फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भले प्रेजेंटली यू फील दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज क्वाइट हायर वन, but still you will be ready to purchase that commodity. Now the next one here, emergency. Yes, this is very true here. In the times of war, famine, then again major illness, household purchase more of the goods even when their prices are rising. मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल दे सकती हूँ, तो आप लोगों ने भी नोट किया रहेगा रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। ओके,
मे बी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई, जून बहुत ज्यादा पैंडेमिक का सिचुएशन था, कोविड का बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन था, और उस टाइम पे गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टोल्ड कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, और ऐसा रिजल्ट आ गया था कि द पीपल हु हैव टेकन द वैक्सीनेशन उनके ऊपर वो ज्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं करा, दो दे विल गोइंग टू गेट इन्फेक्टेड बाय द वायरस, लेकिन ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। एम आई राइट स्टूडेंट? ऐसे ही कहा गया था, यस और नो? यस है ना? Yes. तो उस टाइम पे अगर आप लोगों ने नोट किया रहेगा जून जुलाई के टाइम पे, तो बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लिटरली 1000 रुपये तक वैक्सीन खरीद के पहला डोज लगवाया था। ऐसा किया था या नहीं यस किया था मैम बहुत सारे लोगों ने? यस, Yes, ma'am. This is यस है ना? true. लेकिन अभी क्या है, अभी सिचुएशन इज क्वाइट नॉर्मल, तो अभी आप लोगों का क्या है कि नहीं, इतना पैसा नहीं, अभी हर जगह पे फ्रीली अवेलेबल है। अगर यही यही वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट में पहले इतना इजीली अवेलेबल रहता, तो हम लोग इतना पैसा खर्च करते क्या फर्स्ट डोज के लिए? बिल्कुल नहीं करते। नो तो उससे क्या इंडिकेट होता है कि जब इमरजेंसी रहता है तो उस टाइम पे भले कमोडिटी का प्राइस ज्यादा रहेगा, but still we will going to purchase that commodity. Is this clear to you student? ये समझा आपको? Yes, Yes or यस no? मैम Okay. Now the next point here, fashion. फैशन में, हाँ ये तो बात सही है, फैशन मतलब अगर कोई ट्रेंड में है, मतलब ट्रेंड, कोई कपड़ा हम लोग बोल सकते हैं, कोई फैशन अगर ट्रेंडिंग में है तो हम लोग भले उसका प्राइजेस ज्यादा रहेगा, but still we will going to purchase that commodity. ठीक है? अगर वो ट्रेंड में नहीं है, करंटली कोई उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता है, तो उसका प्राइस भले कम रहेगा या फिर भी आप लोग उसको खरीदोगे नहीं। सो दिस इज ऑल। अगर एक्सेप्शनल के लिए आई कैन से मेडिसिन, मेडिसिन का प्राइस भले ही ज्यादा है, कम है, बट स्टिल यू विल गोइंग टू हैव द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। अगर जरूरत है तो हम लोग को वो खरीदनी ही पड़ती है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल देना चाहोगे स्टूडेंट? और भी है, हैबिचुअल कस्टमर के लिए आप लोग क्या बोलोगे, बता मुझे, जिनको हैबिट रहती है किसी चीज की, क्या एग्जांपल दे सकते हो? सिगरेट अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, यस, वेरी गुड पूरा। ठीक है, कि जिनको सिगरेट अल्कोहल की आदत है तो भले उसका प्राइसेस बढ़ जाता है, but still they will going to demand that commodity. Okay, so this is all about your point about the exception to the law of demand. Next है यहाँ पे देखो, अगर आप लोग नोट करेंगे, so this is the determinants of demand. ठीक है, so determinants of demand, then again the assumption of the law of demand, they are quite same one. तो ये पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर है विच अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। सो जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड द complementary commodity, then again what are the tastes and preferences, size and the composition of the population, what are the consumer expectation about the future, then again expenditure on advertising. This is very true. जितना तुम लोग, ये हम लोगों ने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि जितना हम लोग प्रमोशन के लिए, किसी भी कमोडिटी के प्रमोशन के लिए या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, मतलब जितना इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट आप लोग करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो आई थिंक मैंने देते वक्त आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, कि एक्टर्स को लेते हैं बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट कोको पेप्सी के लिए आई थिंक सलमान खान इज देयर, एंड देन यस कोक स्लाइस का के मैम ले लो लिए, मैम, कटरीना कैफ। ओके पेप्सी के लिए कटरीना कैफ। ओके, तूने एक्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैंने एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। ठीक है, उसके बाद में है कि कोक के लिए आई थिंक ऋतिक रोशन है, जितना मुझे याद आ रहा है। माउंटेन ड्यू के लिए। नो मैम Mountain Dew. किसके लिए? माउंटेन डर ड्यू के के आगे लिए। हाँ मैम। ओके 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 मैम अभी कोक वर्ल्ड कप भी स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसमें भी उसके ऐड ज्यादा दिखाते हैं। ओके ओके। एक्चुअली तुम लोगों का आवाज भी बहुत ज्यादा कम आ रहा है, मुझे एकदम डिटेल में समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एज दे आर सेइंग। ओके, सो अच्छा ठीक है, चलो वो उसने वो एक्टर को लिया है ना, उसने सलमान खान को लिया है, तो फिर दूसरा कोई बोलेगा कि नहीं मैं शाहरुख खान को लेकर रखूंगा। ठीक है, सो दिस वे दे विल गोइंग टू कॉम्पीट विद ईच अदर, एंड भले उनका वहां पे कॉस्ट ज्यादा होता रहेगा, but still they will going to spend a lot of money and they will going to
they will try to improve the effectiveness of the advertisement. जो उस टाइम पे जितना ज्यादा फेमस रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा जाता है. एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत उनको वहां पे ऑब्जर्वेशन रहेगा that it is going to affect the demand for the commodity and therefore they must be ready to spend lot of money. ओके तो जितना ज्यादा तो फिर वहां पे एडवर्टाइजमेंट कैसे अफेक्ट करेगा. तो कोई ऋतिक रोशन वाला फैन रहेगा वो बोलेगा नहीं ऋतिक रोशन ने तो माउंटेन ड्यू के लिए बोला है तो मैं तो माउंटेन ड्यू ही मतलब पीने वाला हूँ. ठीक है तो कोई लड़के लोगों को अगर कतरीना कैफ पसंद आती है सो दे विल गोइंग टू से कि नहीं कतरीना कैफ का एडवर्टाइजमेंट है सो आई विल गोइंग टू यूज हर कमोडिटी हर प्रमोटेड कमोडिटी ओनली. तो ये सब भी अफेक्ट करता है स्टूडेंट. ओके सो देयरफॉर expenditure on advertisement will also going to affect the demand. कैश ऑन क्रेडिट ऑन इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी अगर खरीदना है हमें और वो खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग वो क्रेडिट पे खरीदते हैं. सो क्रेडिट पे खरीदने के टाइम पे जो हम लोग पैसा लेते हैं जो लोन लेते हैं उसपे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अफेक्ट करेगा फॉर द डिमांड फॉर कमोडिटी. एंड द सोशल फैक्टर के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कस्टम्स क्या है ट्रेडिशन क्या है व्हाट आर ऑल प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग कल्चर क्या है अभी फिलहाल कौन सा फेस्टिवल है उसके अकॉर्डिंग. ओके सो दिस सोशल फैक्टर विल आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द डिमांड. इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट ऑल द पॉइंट? यस ओके देन हु विल सेंड मी द अटेंडेंस. फटाफट करो अटेंडेंस का कोई तो स्क्रीनशॉट लेके रखो. हु विल डू दैट? मुराद कैन यू डू दैट? Okay, Yes, Nitesh, ma'am, if you sure. want to do, you can. Yes. Please take the screenshot Yes, fast ma'am. because it shows less than 1 minute. Okay. And today, please send your parents for the vaccination. If they have not done in our college, they can get the vaccination also. Okay. तो तुम लोग भेजो अपने पेरेंट्स को भी आज के दिन.